इज्जत से हारा तो किसी को तोड़ के जोड़ा। हक तलफी ना इंसाफी का, जुल्मो सितम सफाकी का, सरकार की हर कम सरफी का, निजाम की इस बदमाशी का। वोट हिसाब करेगा सब, वोट ही बदला लेगा अब। जुल्म का बदला वोट से, सितम का बदला वोट से। हमारे पास कुछ भी नहीं है और वो फायरिंग करे, फायरिंग की कोई इजाजत नहीं तुम लोगों की। कहीं सोचों पे पहरे हैं, कहीं अंधेरे गहरे हैं, कहीं दहशत के साए हैं, कहीं सफाक चेहरे हैं। जहनों की तालाबंदी का, सोचों पे पाबंदी का, और सिसकी या होजारी का, माफिया की अय्यारी का। वोट हिसाब करेगा सब, वोट ही बदला लेगा अब। दहशत का बदला वोट से, दहशत का बदला वोट से। अल्लाह का कानून है कि जो ताकतवर है वो हमेशा ताकतवर नहीं रहता। यहाँ इंसाफ झुकता है, यहाँ पे कल्म बिकता है, यहाँ पे जिस्म छलनी है, जख्म से खून रिश्ता है। आइन की पामाली का, कौम की बदहाली का, उस रात की तारीकी का, ना हक कैदी का। वोट हिसाब करेगा सब, वोट ही बदला लेगा अब। जबर का बदला वोट से, कहर का बदला वोट से, जबर का बदला वोट से, कहर का बदला वोट से। ये जो बोतल से जिन निकला है ना शऊर का, इसको वापस नहीं हम डाल सकते। अगर आप इस मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करना चाहते हैं तो आप सबको कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। कभी भी आजादी कुर्बानियों के बगैर नहीं मिलती। जो छोटा सा तबका कब्जा करके बैठ जाता है, अगर आपका किसी का ख्याल है कि ये जो कब्जा ग्रुप आराम से छोड़ के चला जाएगा, गलत फहमी में ना रहे। आजादी के लिए कुर्बानी और जद्दोजहद देनी पड़ती है। आप सबको मैं आज कह रहा हूं कि मैं तो तैयार हूं, मैं इसको जहाज समझता हूं, मैं पॉलिटिक्स नहीं समझता। आपने खौफजदा होके अपनी आजादी की तहरीक से पीछे नहीं हटना, क्योंकि ऐसा मौका शायद आए ना जो इस वक्त कौम खड़ी होगी और जो शऊर आ गया कौम में, जो हमारे नौजवान आज खड़े हो गए हैं। आपने अब इससे पीछे नहीं हटना। ये तहरीक उधर पहुंचेगी जिधर हम अपने आप को ऐसे एक वो पाकिस्तान बनेगा जिधर हमें कोई खौफ नहीं होगा कि हमारे ऊपर कोई जुल्म कर सके।
عمران خان کسی کے سامنے جھکے سوائے اللہ کے، اور انشاءاللہ آپ کو بھی کبھی جھکنے نہیں دوں گا. لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ نے ہمیں انسان کی غلامی سے آزاد کیا ہے. اللہ نے ہمیں اپنے ضمیر کے مطابق کہا کہ سٹینڈ لو، تو میں کبھی یہ تسلیم نہیں کروں گا. اور میں قوم کو بھی کہتا ہوں، آپ نے کبھی یہ جو کوشش ہو رہی ہے کہ ساروں کو ڈرا دھمکا کے سب ڈر جائیں اور ہم یہ جو کھچڑی والا سیٹ اپ لے کے آ رہے ہیں ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے، میڈیا کو سب کو کنٹرول کرنے کے لیے، جو منہ کھولے اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو یا وہ وی کو ڈالا پہنچ جائے گھر میں، اور اس سے ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں، آپ کو بھی، میں بھی تیار ہوں ہر قربانی کے لیے، آپ کو بھی تیار ہونا چاہیے. اگر آپ اس ملک کے مستقبل کو روشن دیکھنا چاہتے ہیں، غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہے. میری نظر میں غلامی سے بہتر موت ہے. میرے پاکستانیوں، یہ ضروری ہے ہمیں کہ ہم یہ الیکشن جیتیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ووٹ کے ذریعے ان کو شکست دیں. ہوگا 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 کیا کمال ہوگا، او مرشد اپنا مرشد جد نال ہوگا. ہوگا 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 کیا کمال ہوگا، ہاں مرشد اپنا مرشد جد نال ہوگا. او ٹوٹیں گی دیواریں زندانوں کی، او رونقیں ہوگی پھر سے میدانوں کی. او تیرے جرموں کا میرے ووٹ سے احتساب ہوگا. وہ جب ظلم کا حساب ہوگا تب سوچ تیرا کیا حال ہوگا. دیوانے موج میں ناچیں گے تو وحشت سے بے حال ہوگا. جب ظلم کا حساب ہوگا تب سوچ تیرا کیا حال ہوگا. دیوانے موج میں ناچیں گے تو وحشت سے بے حال ہوگا. وحشت سے بے حال ہوگا. وہ بڑا کام دکھایا ہے، خوش تو ہو گئے کیونکہ عورتوں سے تو جیت کے آیا ہے. یہ حق کا علم ہے جو ہم نے اٹھایا ہے، حق پہ چلنے والوں کو کیا کوئی روک بھی پایا ہے. وہ جیت ہوگی نام ان شیطانوں کی، وہ طاقتوں سے چور ان نادانوں کی. وہ تیرے جرموں کا میرے ووٹ سے احتساب ہوگا. وہ جب ظلم کا حساب ہوگا تب سوچ تیرا کیا حال ہوگا. دیوانے موج میں ناچیں گے تو وحشت سے بے حال ہوگا. جب ظلم کا حساب ہوگا تب سوچ تیرا کیا حال ہوگا. دیوانے موج میں ناچیں گے تو وحشت سے بے حال ہوگا. وحشت سے بے حال ہوگا. 27 سال میری پولیٹکس میں ایک دفعہ بتاؤ کہ میں نے کبھی کسی کو کہا ہو کہ پرامن احتجاج کے علاوہ کوئی احتجاج کرو. ایک دفعہ مجھے کوئی بتا دے. میرے سارے پارٹی سینئرز کو میری پالیسی کا پتا تھا اور سارے سینئرز وہی باتیں کر رہے تھے. پرامن احتجاج، ہم کہیں بھی پرامن احتجاج کر سکتے ہیں، یہ ہمارا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے، کوئی نو گو ایریا نہیں ہے. لیکن یہ جو جلانا تھا یہ ایک پلان سازش کے تحت اس لیے ہوا کہ اس کے بعد پورا ایکشن تیار تھا. ایک دم 48 گھنٹے میں 10,000 لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا اور سارا کچھ
بلیک آؤٹ میڈیا سے اور سارا کنٹرول ہو گیا ایک دم. تو جو پہلے سے پلان بنا ہوا تھا وہ موقع مل گیا کہ ایک دم اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک دم لوگوں کو انہوں نے پارٹی کو ختم کرنے کے لیے پورا پلان بنا ہوا تھا. میں کبھی اپنے لوگوں کو کسی اور ملک کے لیے قربان نہیں کر سکتا. میں اس ملک کا میر جعفر نہیں ہوں. میرے پاکستانیوں، میرے میں خوف خدا ہے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. یہ پالیٹکس نہیں ہو رہی، یہ انقلاب آ رہا ہے. سارے پاکستان کے بڑے بڑے ڈاکو ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ ان کو پوری طرح شکست دیں گے. ایک ضمانت کے اوپر ڈاکو کو پرائم منسٹر بنا دیا اور ضمانت میں اس کا جو بیٹا ہے وہ چیف منسٹر پنجاب کا بن گیا. سوچے ساری پاکستانی قوم، میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ غور سے سوچے کہ ہمارے ملک سے ہو کیا رہا ہے. میں اپنی ساری قوم کو پھر سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں آخری سانس تک
اس ظلم کے نظام کا مقابلہ کروں گا. جب تک میرے ملک میں حقیقی آزادی نہیں آئی میں اس کی جد و جہد کروں گا. جو مرضی کر لیں, جیلوں میں ڈالیں, جو مرضی کریں, دھمکیاں دیں. سیکیورٹی میری ساری لے لی ہے. جو میرا سیکیورٹی کا جو چیف تھا کرنل آصف, وہ غائب ہوا ہے. جو گاڑیاں تھیں, جو سیکیورٹی کی 2 گاڑیاں ساتھ جاتی تھیں, ان کو پولیس اٹھا کے لے گئی ہے. یہاں سارا جو ہمارے ساتھ جو احمد نیازی جو بھی لوگ تھے سب چھپے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو پر ایف آئی آرز کر دی ہیں. اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے میں ان کے پاس جاؤں اور کہوں کہ جی مجھے معاف کر دو کہ میں نے آزادی کی بات کی تھی, مجھے معاف کر دو. اور میں آپ قوم کو بھی کہنا چاہتا ہوں, کبھی نہ اس نظام کو قبول کرنا. جس دن آپ نے اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیا, آپ کا کوئی مستقبل نہیں رہے گا پاکستان میں. پاکستان زندہ باد. جناب عمران احمد نیازی صاحب نے 176 ووٹ حاصل کیے. میں آج اپنی قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اللہ کا سب سے پہلے شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے موقع دیا کہ پاکستان میں وہ تبدیلی لانے کا جس تبدیلی کے لیے قوم 70 سال انتظار کر رہی ہے. میں عمران احمد خان نیازی سب کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ بحیثیت وزیر اعظم پاکستان میں اپنے فرائض, اپنی انتہائی صلاحیت, ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری اور خوشحالی کے خاطر انجام دوں گا. تاریخ میں سب سے بڑا آج پاکستان اکانومی کا چیلنج فیس کر رہا ہے. ہمارا کبھی بھی تاریخ میں اتنا بڑا فسکل ڈیفیسٹ نہیں تھا, کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا ٹریڈ ڈیفیسٹ نہیں ہے, کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنے قرضے نہیں لیے ہوئے. By his own admission, the biggest challenge before the Prime Minister in waiting, Imran Khan, is to fix Pakistan's economy. It's not going to be an easy task for Imran Khan. He will need to take some urgent steps to prevent a potential collapse of the economy. یہ ساری جو 10 بن رہی ہیں یہ 2018 میں شروع ہوئی ہیں اور انشاءاللہ 2028 میں یہ پوری ہو. تو انشاءاللہ یہ جو پاکستان کی گرڈ میں سستی بجلی اور صاف بجلی جو ہمارے ملک میں ملے گی, اس سے صرف لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا, سب سے زیادہ فائدہ ہماری انڈسٹری کو ہوگا سستی بجلی کا. کورونا کے باوجود سی پیک کے منصوبوں پر کام بتدریج آگے بڑھا. وزیر اعظم عمران خان کی چین کے نیشنل ڈیولپمنٹ کمیشن کے چیئرمین سے ملاقات میں گفتگو. مجھے سب سے پہلے تو آج خوشی ہے کہ K2 جو چائنا اور پاکستان کی کوپریشن سے یہ جو K2 کی آج ہم انوگریشن کر رہے ہیں 1100 میگا واٹ بجلی پیدا کرے گا, 1100 میگا واٹ کلین انرجی پیدا کرے گا. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں ملک بھر میں 10 ارب درخت لگائیں گے اور پورے ملک میں پلانٹ فار پاکستان شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے. I invite everyone to follow the example of Imran Khan of Pakistan, who has pledged to plant 10 billion trees in Pakistan alone, and he's going some. وزیر اعظم کا پاکستان کو ماحول دوست ملک بنانے کے لیے ایک اور انقلابی پلان تیار. وفاقی حکومت نے پاکستان کی پہلی الیکٹریکل وہیکل پالیسی تیار کر لی ہے. یہ جو الیکٹرک وہیکلز ہیں یہ اب آگے ہمیں اپنے شہروں کو پولوشن سے بچانے کے لیے ہمیں اب شہروں کے اندر الیکٹرک بسز لانی پڑیں گی, گاڑیاں لانی پڑیں گی, موٹر سائیکل, سب سے زیادہ موٹر سائیکل کیونکہ اس میں زیادہ استعمال ہوتا ہے, زیادہ ان کی انٹینسٹی زیادہ ہوتی ہے. انشاءاللہ جب ایک ملک کے اندر ایک ہی کریکولم ہوگا اور ایک طرف ایک ڈائریکشن پہ ملک جائے گا, ہمارے نوجوان جائیں گے, وہ ہے اصل آزادی کا راستہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 8, 9 اور 10 کلاسز میں سیرت نبی پڑھائی جائے گی. وزیر اعظم پاکستان عمران خان آج کامیاب جوان پروگرام کا افتتاح کریں گے. پروگرام کے تحت نوجوانوں کو 10,000 سے 50 لاکھ تک کا قرض, کاروبار, اعلیٰ تعلیم اور ہنر کے مواقع دیے جائیں گے. اس قرض کی مدد سے وہ اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر سکیں گے اور ہنر بھی سیکھ سکتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ کاروبار بھی کر سکتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان آج احساس کفالت پروگرام کا باقاعدہ اجرا کریں گے. جب کورونا وبا آئی تو ہم پاکستان کی آدھی آبادی کو 12,000 روپے کی گرانٹ دینے میں مصروف تھے, دن رات مصروف تھے. جو نچلے طبقے کے اوپر جو ہم 12,000 روپے دیتے تھے, جو 80 لاکھ خاندان کو ہم دیتے ہیں, اس کو ہم نے 12,000 سے 14,000 پہ کر دیا. احساس راشن, اس کا مقصد ہی صرف یہ ہے
यूटिलिटी स्टोर्स पर जाके 30% डिस्काउंट ले लें, यानी 30% कम पे उनको मिलेगी अगर वो हमारी एहसास राशन के अंदर रजिस्टर्ड है, जो कि 2 करोड़ खानदान। और फिर एहसास ये जो हमारा हेल्थ कार्ड है, हर खानदान को इंशाल्लाह हेल्थ कार्ड मिलेगा जो कि 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस है। हमने तेज रफ्तारी से असास नशोनुमा की डाक बेल रखी, 50 सेंटर खोले, उसकी इवैल्यूएशन की, और अब हम इसी माली साल में पाकिस्तान की हर डिस्ट्रिक्ट में एहसास नशोनुमा सेंटर खोल रहे हैं। वज़ीर आज़म साल के पहले दिन मॉडल लंगर खाना पनाहगाह का इफ्तिताह करेंगे। सर्दियों के अंदर यहाँ बेचारे लोग सड़कों के ऊपर पड़े हो, मेरी जो सोच वो ये है कि ये आपने जो आज मॉडल बनाया है ये रेप्लिकेट होगा सारी जगह। और इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपने इनको डिग्निटी देनी है लोगों को। 112 लंगर ये पहले फेज में, और हमारा कोशिश ये है कि हर उन इलाकों के अंदर जिधर लोगों को, जिधर भूख है, जिधर मजदूर है, रोजगार नहीं मिल रहा, हर उन इलाकों के अंदर इंशाल्लाह एक्सपैंड करते जाएंगे लंगर। कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम का आगाज किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि मोबाइल गाड़ियां मखसूस जगहों पर खाना फराहम करेंगी, ट्रक 3 वक्त का खाना पहुंचाएंगे। पाकिस्तान में 1 करोड़ 80 लाख बच्चा स्कूल से बाहर है, तो एहसास तालीमी वज़ाइफ जो है वो बच्चों को स्कूल में वापस लाने का एक बहुत अहम पॉलिसी टूल है। फिर हमने स्कॉलरशिप्स का, मैं आपको बता दूं, 26 लाख हमने स्कॉलरशिप्स, और इसके ऊपर 38 अरब रुपया हम खर्च कर रहे हैं। जो ग्रेजुएट्स हैं, जिसने BA की हुई है, जिसके पास नौकरी नहीं है, हमने फैसला किया कि हम उनको इंटर्नशिप दिलवाएंगे। 30,000 रुपए जो भी ग्रेजुएट होगा उसको कोई इंटर्नशिप दिलवाएंगे ताकि उनको कम से कम कोई पैसा दें। एक एक घर में अगर शहर में है तो 5 लाख रुपया सूद के बगैर कर्जा अपना कारोबार शुरू करने के लिए, अगर देहात में है तो 3.5 लाख सूद के बगैर कर्जा किसान अपनी ज़मीन पे लगाए, और 20 लाख सूद के बगैर कर्जा अपना घर बनाने के लिए। और फिर एक उसी खानदान में टेक्निकल एजुकेशन, एक फ़र्द को टेक्निकल एजुकेशन दे ताकि वो हुनर सीखे, अपने लिए कमा सके घर पर। और अब तक हम जितना पैसा दे चुके हैं, मेरे ख्याल में 2.5 अरब है। हम जो आगे देने जा रहे हैं पैसा, 1000 अरब रुपए के कर्जे देंगे यही 45 लाख खानदानों को, और फिर इसको बढ़ाते जाएंगे। और फिर मैं वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह जैसे ही तुम्हारे पास टैक्स बढ़ती जाएगी, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम और मदद करें इस तबके की जो इस वक्त महंगाई की लपेट। वर्ल्ड बैंक ने एहसास प्रोग्राम को समाजी तहफ़्फ़ुज़ पर दुनिया के 4 बेहतरीन प्रोग्राम्स की फहरिस्त में शामिल किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सानिया निश्तर और एहसास टीम को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम लाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि हम ऐसा इंतखाबी अमल चाहते हैं जिसे हारने और जीतने वाले दोनों कबूल करें। पाकिस्तान में अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लाने लगे, तो हम ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए भी एक सिस्टम लेके आ रहे हैं ताकि वो भी अपनी वोट डाल सके। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का बिल कौमी असेंबली ने मंजूर कर लिया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट मुतारिफ करवाने की मंजूरी दे दी है। पिछले 1 साल में रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आई हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, सारे पिछले रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए आज रोशन अपना घर स्कीम का इजरा करेंगे। रोशन अपना घर, एक आदमी काम करने बाहर जाता है, पैसे बनाता है, मजदूर भी हो, उनकी हमेशा कोशिश होती है कि पाकिस्तान में घर बनाया जाए। उसके लिए उनके लिए बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि यहाँ जो कब्जे ग्रुप बैठे हुए हैं, तो कम से कम अब इनको ये पता चल जाएगा कि बैंक की पीछे गारंटी है, और फिर वो बैंक से कर्जे भी ले सकेंगे घर बनाने के लिए। और मेरे ख्याल में ये एक वाकई जिस तरह बात की गई गेम चेंजर है, क्योंकि हम इससे बहुत ज्यादा पैसा अट्रैक्ट कर सकेंगे जिसकी पाकिस्तान को शदीद जरूरत है डॉलर्स की। ओवरसीज पाकिस्तानी की पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए जो आपने 2 रोशन अपनी कार और जो रोशन समाजी खिदमत, ये जो 2 आपने और प्रोडक्ट्स दिए हैं, इंशाल्लाह ये कामयाब होंगे या पाकिस्तान सदफ के। ये इनिशिएटिव इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम उन पाकिस्तानियों को एक मौका दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान में पैसा भी अपना ला सकते हैं, उनको रिटर्न्स भी अच्छी मिल सकती हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि अपने मुल्क की मदद कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का उम्मत मुस्लिमा के लिए एक अहम इक़दाम, अब दीनी और दुनियावी तालीम साथ साथ मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज सुहावा में 500 केनाल पर मुश्तमिल अल-कादिर यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रखेंगे। दुनिया के बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स जो दुनिया में होते हैं उन सबको बोर्ड के ऊपर लेके आया हूँ, और मेरी कोशिश ये है कि अपनी कौम को एक ऐसी इंटेलेक्चुअल लीडरशिप दूं अल-कादिर यूनिवर्सिटी से कि जो लोगों को समझ तो आए कि अल्लाह ने क्यों हमें पैदा किया, हमारा
इस दुनिया में मकसद क्या है, हम जब इस दुनिया से जाएंगे तो हमारा क्या होगा। मैं इंशाल्लाह कल आगाज कर रहा हूँ रहमतुल आलमीन अथॉरिटी का। मैंने रहमतुल आलमीन अथॉरिटी क्यों बनाई थी कि हम सब अपने आप को कहते हैं हम आशिक रसूल, लेकिन आशिक रसूल है तो उसको साबित आप ऐसे कर सकते हैं कि उनकी सीरत पे चले, उनके रास्ते पे चले। उनका रास्ता किधर है, कौम किस तरफ जा रही है। और सिर्फ मेरा मकसद ये है हमारे बच्चे को समझ आए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम क्या था, सीरत नबी क्या थी। और इसके साथ साथ जो हमने फैसला किया है कि 8, 9 और 10 क्लासेस में सीरत नबी पढ़ाई जाएगी। There are 1.3 billion Muslims in this world. Islamophobia since 9/11 has grown at a pace where it is alarming. Hijab is some sort of a weapon. It's become an issue in some countries. It is important to understand this. The Prophet lives in our hearts. When he is ridiculed, when he is insulted, it hurts. As we human beings understand one thing. The pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. And that's why the Muslims react. اقوام متحدہ نے اسلاموفوبیا پر پاکستان کی متعارف کروائی گئی OIC کی قرارداد منظور کر لی ہے۔ 15 مارچ کو اسلاموفوبیا سے نمٹنے کا عالمی دن قرار دے دیا گیا۔ وزیر اعظم نے امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ آج اقوام متحدہ نے بالآخر دنیا کو درپیش اسلاموفوبیا کا سنگین چیلنج تسلیم کر لیا۔ اگلا چیلنج اس تاریخی قرارداد پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہے۔ دنیا مہمان، پاکستان میزبان۔ اسلام آباد میں OIC کانفرنس کا آغاز۔ دنیا بھر سے اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ پاکستان کے مہمان۔ کشمیر اور افغانستان کی صورتحال، اسلاموفوبیا اور امت مسلمہ کو درپیش مسائل کا حل تلاش کیا جائے گا۔ 100 سے زائد قراردادیں زیر بحث آئیں گی۔ OIC چیئرمینشپ 1 سال کے لیے پاکستان کو منتقل ہو گئی۔ کراچی کے لیے جو پیکج لے کے آئے ہیں وہ ایک تاریخی پیکج ہے۔ 1100 ارب روپے کا پیکج لے کے آئے ہیں۔ اس میں ہم کریں گے کیا چیزیں، جو بڑی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جو ایک سب سے بڑا کراچی والوں کا مسئلہ پانی کا مسئلہ، 26 کروڑ گیلن یومیہ کی پانی کی اسکیم K4 جو 1 دہائی سے زیادہ التوا کا شکار تھی، فروری 2022 میں اس منصوبے کے اوپر دوبارہ سے کام شروع ہو جائے گا۔ میں دوبارہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نصف مکمل ہو کے چھوڑ دیا گیا تھا۔ دوسرا ایشو نالوں کا ہے کہ گجر نالا، محمود آباد نالا، اورنگی نالا، جس کے اوپر آج تک کسی حکومتوں نے کام نہیں کیے۔ 34 ارب روپے صرف نالوں کی ڈیولپمنٹ کے اوپر دیے۔ ٹرانسپورٹ، وہ گرین لائن کا منصوبہ جو سالوں سے جس کا کہا جا رہا تھا کہ جی ہمارے بچوں کے بچے استعمال کریں گے اس منصوبے کو، وہ اس نے اپنی حکومت نے بنا کے تیار کر کے عوام کے لیے چھوڑ دیا۔ کراچی سرکولر ریلوے کا منصوبہ ہے اور 300 ارب روپے جاری کر دیے، اس کے اوپر اس وقت کام چل رہا ہے۔ فریٹ ٹرین 70 ارب روپے، پورٹ سے جتنا سامان نکلتا ہے پیپری کی طرف جاتا ہے کہ رات کو 12 بجے کے بعد جو ہے وہ کنٹینر چلائے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر چلتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ تھا جس کو خان صاحب کی گورنمنٹ نے حل کروا دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے بڑا اعلان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگلا PSL پورا پاکستان میں ہوگا۔ کہا کہ آج پاکستان محفوظ ہے، ملک میں سیکورٹی کی صورتحال بھی بہت بہتر ہے۔ ہم نے اگلا جو PSL ہے پاکستان سارا وہ پاکستان میں ہوگا، بجائے کہ وہ دبئی میں ہوگا۔ کافی مایوسیاں ہو چکی ہیں۔ انشاءاللہ جو اگلا ورلڈ کپ میں آپ جو پاکستانی ٹیم دیکھیں گے، ابھی میرے یہ لفظ یاد رکھنا کہ وہ ٹیم بالکل ایک ایسی پروفیشنل ٹیم آپ کو لے کے آئیں گے، گراؤنڈ کے اندر بیسٹ ٹیم لے کے آئیں گے اور سسٹم ٹھیک کریں گے، نظام کو ٹھیک کریں گے، نظام ایسا لے کے آئیں گے کہ انشاءاللہ بہترین ٹیلنٹ پاکستان کا اوپر آئے گا۔ مشیر تجارت کے مطابق ایمیزون کچھ ہی روز میں پاکستان کو اپنے فروخت کنندگان یعنی سیلرز کی لسٹ میں شامل کرے گا۔ ہماری کامرس منسٹری بڑی دیر کی کام کر رہی تھی، یہ بہت بڑا کام ہو گیا جو ایمیزون اب پاکستان میں آپریٹ کرے گا۔ اور پاکستانی برآمدات کے لیے بڑا دن، میڈ ان پاکستان 4G موبائل فونز کی مشرق وسطی برآمد شروع ہو گئی۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے کے تحت 1000 سے زیادہ فلیٹ اور 500 مکانات تیار کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ 11 کو پہلا لانچ ہوگا اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مسلسل ہم اب اپنی جو ہاؤسنگ ہے یہ سارے پاکستان کے اندر لے کے جائیں گے۔ 3 میگا پروجیکٹس بھی ہم کر رہے ہیں کہ اسلام آباد میں ہم نے لانچ کر دیا ہے بلو ایریا پروجیکٹ، بنڈل آئلینڈ کراچی، راوی سٹی لاہور۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے ملک کی کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے تاریخی ایمنسٹی اسکیم کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم نے تعمیراتی شعبے پر فکس ٹیکس لگانے اور صوبوں سے مل کر سیلز ٹیکس کم کرنے کا اعلان کیا۔ کیپٹل گین ٹیکس نہیں لگے گا۔ تعمیرات سے منسلک تمام شعبوں پر ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کر دیا گیا۔ کنسٹرکشن انڈسٹری ڈیولپمنٹ بورڈ بھی بنانے کا اعلان کیا۔ اور وزیر اعظم عمران خان کا ملکی سیاحت کو فروغ دینے کا فیصلہ۔ پنجاب میں 5 مقامات کو بین الاقوامی ٹورسٹ سائٹس بنانے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ہم نے انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا،
अब दुनिया से डायरेक्टली करतू टूरिस्ट आया करेंगे। मैं आज आप सबके सामने दावा करता हूं कि हमने इंशाल्लाह पाकिस्तान को दुनिया का टूरिज्म सेंटर बनाना है। अहम खबर आपको दे, 2020 में वर्ल्ड टूरिज्म फोरम की मेजबानी पाकिस्तान को मिल गई है। कि मेरी फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तानियों के राइट्स, उनके हकूक, उनकी इज्जत पहले आएगी। जब आप एक खुददार कौम होते हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। हम हिंदुस्तान में सुन रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर बदला लेना चाहिए, स्ट्राइक करनी चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। is faced with the choice. Either you surrender or you fight for your freedom till death. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS or the Taliban? Absolutely not. यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने खत लिखा पाकिस्तान को कि आप रूस के खिलाफ उसके मुखालिफ स्टेटमेंट दें, उसके खिलाफ वोट दें। मैं ये यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं, हम आपके सामने क्या हैं? क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? हमने पूरी कोशिश की अपने 3.5 साल में कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आज़ाद हो। 21-22 के अंदर 6% ग्रोथ रेट। आज इक्तसादी सर्वे जारी किया गया और इक्तसादी सर्वे के मुताबिक रवां माली साल जो 30 जून को ख़त्म होगा, पाकिस्तान की मुतवक्को जो ग्रोथ की शरह है तकरीबन 6%, 5.97%। एग्रीकल्चर 17 सालों के बाद 4.4% ग्रोथ रेट, 4 बम्पर क्रॉप्स 2 साल में। सर्विस सेक्टर ग्रोथ 6.2%, ये भी 17 साल में हाईएस्ट ग्रोथ रेट थी। एक्सपोर्ट्स हमारी हाईएस्ट, पहली दफा इंसेंटिवाइज किया एक्सपोर्टर्स को और उसका नतीजा आया $32 बिलियन एक्सपोर्ट्स। उनको इंसेंटिवाइज किया आपने ओवरसीज पाकिस्तानी को बैंकिंग चैनल से भेजने के लिए। $31 अरब रेमिटेंसेस, ये भी रिकॉर्ड था। हमारी टैक्स कलेक्शन पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा थी, 6.1%। इनके पाकिस्तान की तारीख में टैक्स महसूलात का नया रिकॉर्ड कायम हो गया। FBR ने 6,100 अरब रुपए की नजरसानी शुदा हदफ के मुकाबले में 6,125 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा कर लिया। और फिर जो सबसे रेलेवेंट चीज है, 55 लाख 3 साल में नई नौकरियां हमने प्रोड्यूस की। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ट्वीट में कहा कि 1999 से 2017 तक होने वाली 290 अरब की वसूलियों के बरक्स नैब ने तहरीक इंसाफ के 3 साल दौर इक़्तिदार 2018 था 2020 में 484 अरब रुपए वापस निकलवाए। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपके सामने हैं। लेकिन बदकिस्मती हमारी क्या हुई, कोविड आ गया। और कोविड से क्या हुआ, जो हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आया कि $70 बैरल से हमारा एक वक्त पे गई $115 बैरल। जो एडिबल ऑयल था, घी था, $780 टन से 1500, यानी दुगना हो गया तकरीबन। कोयला जो था 80 टन से 280 टन पे चला गया। और इसके बावजूद जो हमारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था वो 12.2 पे रखा हमने, और जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स था वो 14% पे हमने रखा मार्च 22 तक। इंटरनेशनली माना गया कि तहरीक इंसाफ ने किस तरह ये सारे चीजों का मुकाबला किया। तो दुनिया क्या कहती है? सबसे पहले इकोनॉमिस्ट मैगजीन इंडेक्स में मईशत कोविड के बाद बहाली के अदाद शुमार जारी किए। पाकिस्तान पहली तशखीस में तीसरे और दूसरे में नंबर 1 था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की कोविड के खिलाफ कामयाब पॉलिसीज का एक और आलमी एतराफ सामने आया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 25 नवंबर को पाकिस्तान स्टेबिलिटी डे मनाने का ऐलान कर दिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खुद मिसाल दी पाकिस्तान की कि जिस तरह इन्होंने इस चैलेंज का मुकाबला किया। आलमी इदारे सेहत की कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ। सरबराह WHO ने कहा कि पाकिस्तान ने वबाई बीमारी पर कामयाबी से काबू पाया। वबा के दौरान मईशत के इस्तेहकाम के लिए भी हुकूमत के इक़दामात को सराहा गया। आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है, मेरे गुफ्तार की देरी न रविश जिंदा है। आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है, मेरे गुफ्तार की देरी न रविश जिंदा है। आज भी जुल्म के नापाक रिवाजों के खिलाफ मेरे सीने में बगावत की खलिश जिंदा है। जब रोज़ फाकी और तुग़यानी का बागी हूँ
मैं, नशाए कुव्वत इंसान का बागी हूँ मैं, आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है। तकदीर का काजी कहता है क्यों जुल्मत के दिन सहता है, हो तकदीर का काजी कहता है क्यों जुल्मत के दिन सहता है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल का कातिल बन के रहता है, ना जीता है ना मरता है क्यों हक लेने से डरता है हक हमारा, है हक हमारा, है हक हमारा, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, है हक हमारा, आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी। लाहूती उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही, वो दौर गया जब कहरो जफा को राम मचाया करता था, जब दस्ते सितम आवाजों को खामोश कराया करता था, जब अहले खिरद की सोचों पर एक खौफ का पहरा रहता था, जब जुल्म की हर यलगार यहाँ मजलूम मुसलसल सहता था, अब जाग उठा है ये देश हमारा, अब जाग उठा है देश मेरा, अब यलगारों की कार नहीं, है हक हमारा, है हक हमारा, तुझे देनी पड़ेगी, हम लेके रहेंगे, तुझे देनी पड़ेगी, कैसे ना देगा जो तुमने ना दी, तो छीन के लेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, जरा झूम के बोलो, दिल फाड़ के बोलो, जरा धाड़ के बोलो। मेरे जो सलमान रुश्दी के व्यूज हैं वो बरका के दाद के इंटरव्यू के अंदर मैंने दिए हुए हैं, वाहिद पाकिस्तान का लीडर, बाकी तो हमारे लीडर्स उसके खिलाफ बात नहीं करते थे क्योंकि मगरब में उसकी बड़ी सपोर्ट थी। तो मेरे बड़े क्लियर व्यूज हैं उससे, और उस इंटरव्यू में भी मैंने कहा कि इसने 1.5 अरब मुसलमानों की इससे तौहीन की, मैंने बड़ा वाज़ेह
اور میں پھر سے آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ جو میں جو بات کر رہا تھا وہ اسپیسیفکلی کر رہا تھا کہ جو طریقہ کار ہے، اور میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ اس کو الاؤ کر دیں گے، اجازت دے دیں گے، جو سری لنکا کے اندر انہوں نے اس کو فیصلہ کیا کہ یہی اس نے کیا ہے توہین، اور ساروں نے پکڑے چلا دیا اس کو، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس ملک کو کتنا نقصان ہوا. میں پرائم منسٹر تھا، باہر کے لیڈرز کی کالز آئے مجھے، جو لوگوں کا جو باہر کے پریس میں ہمارے اگینسٹ لکھا گیا. سو اس لیے جس وقت آپ وہ انڈورس کرتے ہیں نا، آپ دروازے کھول دیتے ہیں، کہیں بھی جا کے کوئی فیصلہ کرے جی فلاں نے توہین کیا اس کو مار دیں. اس کے میں صرف پروسیجر کے پوائنٹ تھا. سلمان رشدی میرے خیال میں بہت بڑا فتنہ تھا، میرے بڑے اس کے اوپر کلیئر ویوز ہیں. میں اس کو کہا کہ میں کبھی کسی فورم کے قریب ہم نہیں جانا چاہتے جدھر یہ فتنہ، جس کو پتا تھا کہ مسلمانوں کو ہوتے ہوئے اس سے تکلیف پہنچائی. خان صاحب اگر آپ اٹک جیل، بیرک نمبر 3، قیدی نمبر 804. جرموں کی ایک طویل فہرست. پاکستان کو اکلوتا کرکٹ ورلڈ کپ جتوایا، فری کینسر ہسپتال بنائے، پسماندہ علاقے میں یونیورسٹی بنائی، پھر اپنی آسان زندگی چھوڑ کر ملک کے کونے کونے میں جا کر لوگوں کو سیاسی شعور دیا. یہ بہت بڑے جرم ہیں. تم کو آزاد نہیں چھوڑا جا سکتا. تم طاقتور کو قانون کے نیچے لانا چاہتے ہو. تم مافیا سے ٹکر لینا چاہتے ہو. تم چاہتے ہو کہ ریاست کمزور اور غریب کی حفاظت کرے. تم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو، کشمیری اور فلسطینیوں کی بات کرتے ہو. دنیا کو بتاتے ہو کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں. یہ کیسی سوچ ہے؟ یہ کیسا خیال ہے؟ پاکستان کو دنیا میں عزت دلوانا چاہتے ہو. تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ پاکستان ایک آزاد اور خوددار ملک بنے؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ لوگوں کو بتاؤ کہ پاکستان ایک عظیم خواب تھا؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھاؤ؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ لوگوں کو حق کے لیے اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کی باتیں کرو؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ لوگوں کو ایک بہتر پاکستان کی امید دو؟ یہ بہت بڑے جرم ہیں. یہ بغاوت ہے. ہاں، تمہیں جیل میں بند کر کے رکھنا ہوگا. تمہاری آواز بند کرنی ہوگی. اٹک جیل، بیرک نمبر 3، قیدی نمبر 804. خان صاحب، آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں جو اس کا تصور آج سے 1400 سال پہلے آیا. آپ اس کو 21ویں صدی کے مطابق کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں کیا خاکہ ہے ایک ریاست مدینہ کا؟ ریاست مدینہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب تھا. دنیا کی تاریخ کے اندر ایک ایسی قوم بنی جس نے دنیا کی امامت کی، اور وہ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصولوں پہ بیس کیا تھا. وہ انقلاب سب سے پہلے عدل اور انصاف، انسانوں کو آزاد کیا. اس کے ساتھ میریٹوکریسی آئی، انصاف کے ساتھ میریٹوکریسی آتی ہے. اس کے بعد تعلیم کے اوپر انہوں نے زور دیا. بڑے کئی صدیوں تک سب بڑے سائنسدان مسلمان تھے. اس کے بعد انہوں نے فلاحی ریاست بنائی جس کے اندر ایک عام انسان کی قدر ہوئی. ریاست نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لی. جب سے پاکستان بنا ہے، کیونکہ ہماری آبجیکٹو ریزولوشن یعنی ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے کہا تھا کہ پاکستان نے فلاحی ریاست بننا ہے، تو وہ سارے انتظار کریں گے پہلے پیسہ آئے گا اور پھر فلاحی ریاست بنے گی. مدینہ میں پہلے فلاحی ریاست بنی تھی، پھر پیسہ آیا تھا، اللہ کی برکت آئی تھی. آج جو مغرب میں ملک دیکھ لیں، اسکینڈینیویا میں جو فلاحی ریاستیں ہیں، وہ خوشحال ہیں سب. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس لیے خوشحال ہیں کہ اللہ کی برکت ہے وہاں، کیونکہ وہ رب العالمین ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. تو جو ان کے پیغام پہ اور ان کی سنت پہ چلے گا، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، وہاں خوشحالی آئے گی، اللہ کی برکت آئے گی. قصبہ پرسی کے عالم میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں تازہ ہوا کا ایک دل فریب
75 साल जहालत और गुलामी की बंजर मिट्टी पर बरसने वाली शऊर और आजादी की पहली बारिश इमरान खान। जब तक आपका कप्तान खौफजदा नहीं तो आपको किसी से डर है? ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। Never has one man scared the establishment, the political parties as much as it is right now. You look at television, there is only one man which is featuring. जब ये मेरा नाम सुनते हैं तो इनकी कांपे टांगनी शुरू हो जाती है। मेरा चैलेंज है तुम्हें, जो मर्जी कर लो, तुम शिकस्त खाओगे, तुम हारोगे। हमारा पाकिस्तान, हम फैसला करेंगे, हम करेंगे। आखिरी सांस तक इस जुल्म के निजाम का मुकाबला करूंगा। ये गुलाम कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं है और आजादी कोई प्लेट में रख के नहीं देता। आजादी के लिए लड़ना पड़ता है। जंजीरें गिर नहीं जाती, तोड़नी पड़ती है। मौलाना रूमी ने कहा, जब एक कौम अच्छे और बुरे की तमीज खत्म करती है, कौम मर जाती है। You enjoying this fight? Yes, because I think if I woke up and there was no challenge in my life, I would think it's the end of my life. इस हफ्ते में गोलियां खा करके 150 पर्चे बर्दाश्त कर करके दहशतगर्दी के दांतों के चक्कर लगवा कर फिर भी आसमान को देखते हुए मुस्कुराता हुआ ये शख्स नारक का बच्चा है। खुदा गैरतमंद है ये। बहादुर माँ ने बहादुर बेटा पैदा किया है। समय बड़ा तूफान प्रबल, पर्वत भी छुट जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ इमरान खान जैसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि एक एक करके हर चीज आपके हाथों से निकल रही है और हालात आपके मुवाफिक नहीं है, तो एक बात उस दरख्त को जरूर देख लीजिए जिसका एक एक पत्ता उससे चढ़ता जा रहा है, लेकिन वो दरख्त खड़ा है इस उम्मीद के साथ कि बहार आएगी और बहार को आने से कोई नहीं रोक सकता। आप चाहे तो उस दरख्त को भी काट दो तो बहार फिर भी आएगी। वो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। उसको तोड़ना चाहते हैं, उसके हौसले को तोड़ना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं। वो आदमी नहीं टूट रहा, नहीं टूटेगा। उम्मीद नहीं टूटने दे रही है, आजादी की उम्मीद। अरे उसे हटाने के लिए इस मुल्क में जज बिका, जर्नैल बिका, सियासतदान बिका, मुल्ला बिका, सहाफी बिका, दानश्वर बिका, दलाल, और न जाने कौन किस किस की खाट पे बिका। वो आज भी अल्लाह के हुक्म से खड़ा है। अल्लाह तेरी इबादत करते और अल्लाह सिर्फ तेरे से मदद मांगते। He will succeed. He is bound to succeed. ये आपको 1000 में से 1000 दफा गलत चीज करेगा। जो हारने से डर गया ना वो कभी नहीं जीत सकता, पत्ता पलटेगा। अमीर शहर की मुझसे फकत इतनी सी लड़ाई है कि मैं वो सर बनाता हूँ जिन्हें झुकना नहीं। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में, रिस्क अल्लाह के हाथ में, तो फिर डर किस चीज का? ऐसा हीरा आदमी, ऐसा लीडर कहाँ मिलता है? अल्लाह ताला ने पाकिस्तान पे तोहफा दिया। जो जिंदगी है ना वो कभी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती। कोई आज तक दुनिया में ऐसा इंसान नहीं आया जो एकदम जीरो से एकदम कामयाब हो गया। साइकिल्स में जाता है, ऊंच नीच जिंदगी का नाम है। हमने तुम्हारे लिए बहुत दुआएं की हैं। अल्लाह तुम्हारे लिए हमारी दुआएं कबूल फरमाए। उसे हौसला है कि उसकी सोच को, उसकी बात को, उसके अल्फाज को ये बड़ी बड़ी फसीलें बांध के नहीं रख सकते। मुफाहमत ना सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सर बेकाबू लड़ा दे किसी बला से मुझे।
जान माल इज्जत आबरू अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद खान पे और पाकिस्तान पे जितना भी ये डाकुओं का गुलदस्ता, चोरों का टोला, ये जितनी भी कोशिश करे वो भी करे, जितनी भी ये प्लानिंग है, मैं इनके लिए तैयार हूं। दबे पाओ कि कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, और होती नहीं जो कौम हक बात में यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सदा है। भूरी कार्ड, औरत कार्ड, मजहब कार्ड, चौधरी सरवर जहांगीर तरीन, अलीम खान, प्रेस कॉन्फ्रेंस, फरागोगी, तोशा खाना, रिहाम खान, शाहिद अफरीदी, तैयबा गुल, आयशा गुलाल, मुस्तफ़ा कमाल, गुलकार जवाद अहमद, मलक रियाज, आरयू लीग, जेडयू लीग, कॉल लीग, ममनुआ फंडिंग और 90% मीडिया के नाम में हाथ सहाफ़ी के तजुर्बे मिलाकर सब खाक में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कप्तान आज भी मकबूलियत की उरूज पर है। जिस रेस से मुझे निकालने की बात कर रही है बेवकूफ, वो नहीं जानते उस रेस का सिकंदर मैं हूं। आप हमारे लिए हमारे मुल्क की जमीन को तंग कर दें तो आप मुझे बताना, और हम अपनी जमीन पे आजादी से रहने का हक मांगे तो हम गद्दार हैं, हम बागी हैं। आप खुदा ना खास्ता कभी हार भी जाएं तो आप मुझ पे वतन है, और हम आपसे पूछें कि हुजूरे वाला ये क्या हुआ था तो हम गद्दार हैं, हम बागी हैं। हम हंसे तो गद्दार हैं, रोए तो गद्दार हैं, बोले तो गद्दार हैं, चुप रहे तो गद्दार हैं, बात करें तो गद्दार हैं, ना करें तो गद्दार हैं, हम सवाल करें तो गद्दार हैं, जवाब मांगे तो गद्दार हैं, जवाब ना देने पर रिएक्ट करें फिर गद्दार हैं, क्योंकि हम पैदा हुए हैं हुजूर गद्दारी के। जब मुसलमानों का अरूज हुआ तो मैं इसलिए बार बार अपनी यूथ को कहता हूं, नौजवानों को कहता हूं, वो स्टडी करें, वो तारीख का हिस्सा है, वो कोई मिथोलॉजी नहीं है। 623 को क्या था, हिजरत हुई, उसके बाद क्या 625 को जंग बदर हुई, 636 को रोमन एम्पायर बैजेंटाइन यार्मो की जंग के अंदर हार जाता है, जो 625 सिर्फ 313 लड़ने वाले थे। 11 साल के बाद रोमन एम्पायर गिर जाता है, 12 साल के बाद पर्शियन एम्पायर उनके सामने गिर जाता है। तारीख का हिस्सा है। क्या था वो इनकलाब? वो अरब जिनको पूछता कोई नहीं था, दो सुपर पावर्स थी, एक तरफ पर्शियन एम्पायर, दूसरी तरफ रोमन एम्पायर। वो क्या चीज उन्होंने की कि दुनिया की तारीख बदल गई। और ऐसा सारे साइंसदान मुसलमान सबसे अजीम दुनिया की कौम बन गई। अल्लाह कुरान में कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से सीखो, उनकी सुन्नत पे चलो। उनकी सुन्नत पे जो इंसान चलेगा वो बड़ा इंसान बन जाएगा, क्योंकि उनसे बड़ा इंसान कभी आया ही नहीं है दुनिया में, ना आ सकता है। अगर मैं अकेला भी रह गया, अकेला, मैं तब भी हकीकी आजादी के लिए इस मुल्क के लिए खड़ा रहूंगा। मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह इस मुल्क की तारीख इस चीज की गवाही देगी कि इमरान खान अपने मुल्क के लिए आखिरी वक्त तक अपने मुल्क के लिए खड़ा रहा था। कि दुआ करो कि
कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। एक चराग कई आंधियों में भारी। इस वक्त वो कल्ला बंदा है जिन्हें सारी पार्टियां न लड़ता पाया, एस्टैब्लिशमेंट न लड़ता पाया, निजाम न लड़ता पाया। मजा है लड़ने में, खड़े होने में, साथ खड़े होने में। कोई गल नहीं, मारा पैंदियां रहियां, कुर्बानियां देनियां पैंदियां। कि मैं तो तैयार हूं, मैं इसको जहाज समझता हूं, पॉलिटिक्स नहीं समझता। मैं तो तैयार हूं, जो अल्लाह ने फैसला करना है, लेकिन मैं तो यही बैठा रहूंगा ज़बान पाक में। जिसने आना है यहां आगे मार दे, लेकिन मैं यहां से नहीं जानता। एक वो कौम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, जिस कौम के बनने के बाद नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, अभी मैं इन चोरों को तस्लीम नहीं करूंगा। जब तक मेरे में खून है मैं इनका मुकाबला करूंगा, और जो भी इनके पीछे समझ रहे हैं कि ये कौम चोरों को तस्लीम करेगी, उनका भी मुकाबला करूंगा, कभी हार नहीं मानूंगा। इमरान खान भी सलाहुद्दीन अय्यूबी बन गया है, जिसको कहा कि आगे जंग रोक दो क्योंकि सारे दुश्मन हमारे खिलाफ इकट्ठे हो गए। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुस्कुराकर तारीखी जवाब दिया, यही तो बेहतरीन वक्त है जंग का। अब हमें दुश्मन को ढूंढना नहीं पड़ेगा। जो मर्जी करना, इकट्ठे हो जाओ, सब इकट्ठे हो जाओ। मैं आपको एक आदमी को नहीं छोड़ूंगा जिसने इस मुल्क का पैसा चोरी किया। एक बहादुर 100 बुज़दिलों से बेहतर है। अगर जरूरत हुई तो इस मकसद के लिए मैं अकेला रहूंगा। किसी पठान मानी तुझसे ज्यादा बहादुर औलाद पैदा नहीं की। हाँ साहब को कुछ होता है, इससे ज्यादा फसाद खड़ा होगा, और वो तो फसाद खड़ा होगा ना। आज तक एक भुट्टो के नाम के ऊपर पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत कर रही है, और अब जो भुट्टो खड़ा होने लगा ना वो पठानों में है, और पठान जो है ना वो दुश्मनी कब्र तक निभाते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये खतरनाक होगा। मैं इन बलाओं के कलेजों से सीने से कलेजे निकाल के खा जाऊंगा। मेरा रब मेरे साथ है, मैं गुजर जाऊंगा इस समंदर और दरिया से। अल्लाह हाथ रख लेगा नीचे। अपने ज़हन में डाल लो कि जब रात ज्यादा देगी जाती है ना, तो इसका मतलब सुबह होने वाली। मैं जब अपने अल्लाह के पास जाऊंगा, मैं उससे एक चीज सुनना चाहता हूँ। मैं सिर्फ उससे एक चीज सुनना चाहता हूँ कि मेरा अल्लाह मुझे ये कहे कि शाबाश इमरान, कि तुमने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब। आपका कप्तान जब तक उसके अंदर खून है वो खड़ा है। आखिरी गेंद तक लड़ने वाला कैप्टन आपका। हार मानने का सवाल पैदा ही नहीं होता। जो भी ये करेंगे मैं उसके लिए तैयार हूं। इसी कौम को भी मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने किसी सूरत हार नहीं मानी। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये हर मुल्क कैसे एक अजीम मुल्क बन के खड़ा होता है दुनिया में। मेरा वादा आपसे, ये दिन आएगा कि हर पाकिस्तानी जब हरा पासपोर्ट लेके दुनिया में निकलेगा, दुनिया आपकी इज्जत करेगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की पहचान है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान के लोग हैं आप, पाकिस्तान के खान है आप। अल्लाह ने कुरान में कहा हुआ है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। हम जब तब्दीली लाने की कोशिश करते हैं तो इमरान खान आके एक स्विच ऑन करके तो तब्दीली नहीं लेके आएगा। कौम का ज़हन बदलता है। अल्लाह ने कहा हुआ है कि मैं नहीं तुम्हें तब्दील करूंगा जब तक तुम खुद फैसला नहीं करोगे कि हम इस तरह की जिंदगी नहीं गुजारना चाहते, हम अपनी जिंदगी बेहतर करना चाहते हैं। हम भी दुनिया के अंदर एक छाती निकाल के फिरना चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। हरे पासपोर्ट की दुनिया में हम इज्जत चाहते हैं, तो ऐसे तो नहीं इज्जत आती। इज्जत एक खुददार कौम को मिलती है, सच्ची कौम की इज्जत होती है। मलेशिया और इंडोनेशिया में जब लोगों ने इस्लाम कबूल किया तो वहां कोई मुसलमान फौज तो नहीं गई थी, मुसलमानों ने फतह तो नहीं किया था इंडोनेशिया और मलेशिया।
जो मुसलमान ताजरों का कैरेक्टर देखा लोगों ने, उतने मुतासिर हुए कि उससे वो लोग मुसलमान हो गए। सच्चे लोग थे, कैरेक्टर वाले लोग थे, बददियानतदारी नहीं करते थे, अपने लोगों से लोगों को रिस्पेक्ट करते थे, अमानतदार लोग थे, इसलिए लोग उनको मुतासिर होकर उनकी तरफ आए। तो हम पाकिस्तान में रियलाइज नहीं करते कि अल्लाह ने इस जमीन को क्या क्या नेमतें बख्शी। एक बड़ी ख्वाब थी पाकिस्तान कि हमने बनाना था वही मिसाली इस्लामी फलाई रियासत, और हमारे पास हम किस तरफ निकल गए। और उसका नतीजा सामने है कि जब तक एक कौम वापस उस नजरिए पे नहीं जाती जिसके लिए बनी थी, अल्लाह की बरकत नहीं आने लगी। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे। मैं अपने ओहदे से इस्तीफा देता हूं। मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। वो जब से क्या है, हमारी जिंदगी बर्बाद होगी। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना, तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। पाकिस्तानी हुए देख लो आपके सामने कि सारे चोर आ गए हैं वापस। मैं सारी कौम को आज कहता हूं कि हम किसी सूरत इन चोरों को और अमेरिकनों के गुलामों को हम कबूल नहीं करेंगे। हर पाकिस्तान के शहर में निकलूंगा। हमारी कौम का फैसला कुन वक्त आ गया। हमारे एम्बेसडर को कहता है कि अगर तुमने इमरान खान को लो कॉन्फिडेंस मोशन में ना हराया, तकब्बर सुने जरा, तो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कहता है अगर कामयाब हो गया तो हम पाकिस्तान को माफ कर देंगे। ओ अमेरिका, हमें तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। तुम हो कौन वो हमें माफ करोगे? वहाँ सिंध हाउस में जाना शुरू हो जाते हैं, 20-20 करोड़ में उनके जमीन बिकने शुरू हो जाते हैं। ये बिक रहे हैं बकरों की तरह। जब मेरे से इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप अमेरिका को बेच देंगे, क्या कहा मैंने? Absolutely not. आप मेरे से कोई और उम्मीद रखते थे? मैं चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश नहीं हूँ। कौन सा मुल्क अपने आप को किसी और मुल्क के लिए कुर्बान करता है? 80,000 हमारे लोग शहीद हुए। 40 अरब रुपए के FIA और NAB में केसेस हैं, और इस आदमी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। ये आपको गुलाम रखने की साजिश हुई है। 30 साल से ये 2 खानदान इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर लेके गए कि अल्लाह तेरे सिवा हम किसी के सामने नहीं झुकते। जब अल्लाह ने आपको पर दिए उठने के लिए, तो क्यों जमीन पे चूतियों की तरह रींग रहे हो? ये वो लोग हैं मेरे पाकिस्तानियों, जेल में डाल लो, जो इस 22 करोड़ गैरतमंद बाशूर कौम को एक गुलाम बनाने जा रही। इनको नहीं पता कि क्या एक इंसानों का जुनून आने वाला है। पाकिस्तान एक कौम बन चुका है। 26 साल से मैं कोशिश कर रहा था कि मेरे मौला इस कौम की खुददारी को जगा। मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान को एक कौम बनते हुए मेरे पाकिस्तानियों एक नया मुल्क उठ रहा है। हमारा एक खुददार कौम खड़ी हो रही है। ये सोशल मीडिया का पाकिस्तान है कि क्या हम गुलामी चाहते हैं या आजादी चाहते हैं? पाकिस्तानियों, मेरी जान इतनी जरूरी नहीं जितनी आपकी आजादी इस मुल्क को जरूरत है। कि क्या नारा लगा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? कि जिस तरह मेरी आवाम मेरे साथ खड़ी हुई है, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का हल्फ उठाना है। चेरी ब्लॉसम कहता है कि बेकारियों को गुलामी करनी पड़ेगी। तुम गुलाम हो, हम गुलाम नहीं है। कि ना आज तक मैं कभी किसी के सामने झुका हूं सिवाय अल्लाह के, और इंशाअल्लाह कभी अपनी कौम को किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा इंशाअल्लाह। जिस इंसान को अल्लाह ने सब दिया था, तो क्या जरूरत पड़ी थी कि 26 साल अपनी जिंदगी के इन गंदे लोगों के साथ मथा लगाए? Either you surrender or you fight for your freedom till death. What will we do? I ask myself this question. My belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight
कि जब मैं कॉल दूंगा वो आखिरी कॉल होगी, क्योंकि मेरी कॉल जब आएगी तो चारों तरफ से इस्लामाबाद की तरफ लोग निकलेंगे। शहबाज शरीफ की छोटी सी जो इस्लामाबाद की हुकूमत है, वो जब चारों तरफ से अवाम का समुंदर आएगा इस्लामाबाद की तरफ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि शहबाज शरीफ ना उसको रोक सकेंगे और ना ये जो डाकू जरदारी है ये रोक सकेगा। अगर इन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मेरी कौम के अंदर शऊर पैदा किया। पाकिस्तान की आन है, पाकिस्तान की पहचान है, पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान की जान है, पाकिस्तान के पाकिस्तान की खान है, इमरान पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? हम लेके रहेंगे, हम छीन के रहेंगे, है हक हमारा, तेरा हक भी देगा। खान साहब, पाकिस्तान के यूथ के लिए आपका क्या विजन है, क्या पैगाम है? देखिए, नौजवानों के लिए सबसे बड़ा पैगाम ये है कि अल्लाह ने हम सबको सलाहियत दी है। हम अल्लाह की अजीम मखलूक है, अशरफुल मखलूकात। हमारे अंदर है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हम अपनी बड़ी ख्वाब रखें, उस ख्वाब के पीछे जब जाएं, हार ना माने, किसी सूरत माशरे में नाइंसाफी को कबूल ना करें। अल्लाह ने जहाद फर्ज की है मुसलमानों पर, और जहाद है क्या? जुल्म और नाइंसाफी के सामने खड़ा होना। जब एक मुल्क के ऊपर चोर मुसल्लत किए जाते हैं और कौम भेड़ बकरियों की तरह सो जाती है, वो कौम खुदकुशी कर लेती है, उस कौम का फ्यूचर खत्म हो जाता है। तो सबसे बड़ी मैं नौजवानों को ये कहूंगा कि पहले तो बड़ी ख्वाब रखें, खुददारी पैदा करें। कभी भी आपको दुनिया के किसी और मुल्क में चले जाएंगे, आपको वो इज्जत नहीं मिलेगी जो अपने मुल्क में। तो अपने मुल्क के लिए लड़े, कभी हार ना माने, और किसी सूरत जुल्म और नाइंसाफी ये ना हो कि आप उसका मुकाबला ना करें, क्योंकि ये एक कौम की मौत है। मैं आजाद पाकिस्तान में पैदा हुआ था, मेरे माँ बाप गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, और जब हिंदुस्तान की हम गुलामी कर रहे थे तो 2 दफा जब बरतानिया ने 2 जंगों के अंदर शिरकत की, पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम, लाखों लोगों ने यहां से लड़े और अंग्रेज के लिए कुर्बानियां दी, लेकिन कभी उनको किसी ने नहीं पूछा, ना कभी इनका शुक्रिया अदा किया गया, क्योंकि हिंदुस्तान गुलाम था। गुलामों की कोई इज्जत नहीं होती। जब अमेरिका की जंग हुई 9/11 के बाद और पाकिस्तान ने अमेरिका की जंग में शिरकत की, तो सबको आपको पता है कितने पख्तूनख्वा से लोगों ने कुर्बानियां दी अंग्रेज की जंग में, अमेरिकनों की जंग में। 80,000 पाकिस्तानियों ने कुर्बानियां दी। कबायली इलाके के लोग जो सारे पख्तूनख्वा के साथ अब हिस्सा बन चुके हैं, कबायली इलाके के लोगों ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी। 35 लाख लोगों ने नकल मुकानी की। क्या किसी ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया? क्या अमेरिका ने कहा कि शुक्रिया पाकिस्तान, आपने 80,000 अपने लोग कुर्बान कर दिए, 3 गुना ज्यादा हमारी फौजियों ने कुर्बानी दी बनिस्बत जो अमेरिकन अफगानिस्तान में जिनकी जानें गई। किसी ने शुक्रिया अदा नहीं किया, बल्कि वहां से आवाजें उठी अमेरिका से कि पाकिस्तान की वजह से वो जंग नहीं जीत सके अफगानिस्तान में। जरदारी और शरीफ 10 साल जब इन्होंने हुकूमत की, 2008 और 18 के दरमियान 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान के ऊपर। और कबायली इलाके में आप जानते हैं कि ड्रोन अटैक क्या होता है। 4000 मील दूर बैठ के एक कमरे के अंदर कंप्यूटर गेम खेली जाती है। बटन दबा के एक आदमी बैठा होता है, सामने कंप्यूटर स्क्रीन होती है उसके, यहां से उसको पैगाम जाता है कि जी इस एरिया में दहशतगर्द है।
4000 मील दूर बैठ के वो बटन दबाता है, बम गिरता है, नीचे कौन मरता है कभी किसी को पता नहीं चला। लेकिन सुने जरा मेरी बात, वहां औरतें बच्चे मरे, बुजुर्ग मरे। एक जगह इन्होंने ड्रोन अटैक किया पजोड़ में, 64 बच्चे मदरसे में मर गए, 64 बच्चे। एक जगह वजीरिस्तान में ड्रोन अटैक होता है, 7 लोग मर जाते हैं, जो जख्मी होते हैं उनकी चीखों की आवाजें, लोग आते हैं उनको बचाने के लिए। दूसरा ड्रोन अटैक होता है, 7 और लोग मर जाते हैं। सुबह तक लोग डरते हैं जाते हुए करीब, जो जख्मी हैं उनकी आवाजें आ रही होती हैं। सुबह को लोग बचाने जाते हैं, फिर ड्रोन अटैक होता है, 7 और मर जाते हैं, 21 लोग मरते हैं। शादियों पे ड्रोन अटैक, जनाजों पे ड्रोन अटैक। और आप जानते हैं कि एक दफा नाज़र तारी के मुंह से एक आवाज निकली, और ये कीदर नवाज शरीफ के मुंह से एक दफा, इनमें इतनी जुर्रत नहीं थी कि अमेरिकनों को कहते कि ये सारे इंसानी हुकूक के खिलाफ है। दुनिया का कोई कानून इजाजत नहीं देता कि आप फैसला करें मुजरिम कौन है और आप ही उसको कत्ल कर दें। जज, जूरी, एक्सिक्यूशनर, दुनिया का कोई कानून इजाजत नहीं देता। लेकिन इस मुल्क पे जिनके लिए हम जंग लड़ रहे थे, 400 ड्रोन अटैक हुए। एक दफा इन दोनों ने जुर्रत नहीं की अमेरिका को कहने के लिए कि क्या आप अपने मुल्क में दहशतगर्द के ऊपर ड्रोन अटैक करेंगे। जुर्रत थी इनमें क्या? इनमें यह जुर्रत थी बरतानिया को कहने के लिए कि लंदन में हमारा बड़ा दहशतगर्द जिसने हजारों लोगों को कत्ल करवाया, क्या हमें इजाजत देंगे ड्रोन अटैक करके उसको मारे? तो अगर अपने मुल्क में आप हमें कहते हैं कि अदालत में जाके साबित करो वो दहशतगर्द है, तो हमारे मुल्क में आपने कैसे आपने 400 ड्रोन अटैक किए, बेकसूर लोगों को मारा, औरतें बच्चों को मारा। और ये तो जिनको फिर से इन 2 खानदानों को फिर से जो मुसल्लत किया इसीलिए किया कि ये उनके गुलाम हैं, इनमें जुर्रत नहीं है, ये पैसे की पूजा करने वाले हैं, ये पैसे के बुत की पूजा करने वाले हैं। इनके पैसे पड़े हैं बाहर, इनके लंदन में, अमेरिका में पैसे पड़े हुए हैं। ये कभी अपने लोगों के हकूक के लिए, उनके फायदे के लिए, ये कभी अपनी जुबान उनके अपने आकाओं के सामने जुबान नहीं खोलेंगे। इसलिए इनको लेके आए, इसलिए इनको पाकिस्तान पे मुसल्लत किया, क्योंकि इनको पता था कि इमरान खान ना इनको बेच देगा, ना यहां से उनकी किसी जंग में शिरकत करेगा, ना वो अपने मुल्क के मफादात को उनके लिए कुर्बान करेगा, अपने लोगों के फैसले करेगा, क्योंकि इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान में है। इसलिए नौजवानों, ये साजिश की गई। भुट्टो और शरीफों के खानदान 30 साल से इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। इनकी वजह से आज शहबाज शरीफ कहते हैं जी हम तो बेकारी हैं, इसलिए गुलाम हैं। हमारा जो नजरियाती लीडर इलामा इकबाल थे, उन्होंने तभी कह दिया था हमने इकबाल का शाहीन बनना है, हमने वो लोग बनने हैं जिन्होंने दुनिया की इमामत करनी है। अल्लाह ने इंसान के हाथ में ये चीज छोड़ दी है कि वो या परवाज कर सकता है और वो या जमीन के ऊपर रेंग सकता है। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि इंसान जब ऊपर जाता है तो फरिश्तों से ऊपर चला जाता है,
और जब वो नीचे गिरता है तो जानवरों से नीचे चला जाता है। ये जो ऊपर बैठे हुए हैं ये जानवरों से नीचे चले गए हैं। एक जानवर भी उतना खाता है जितना उसकी भूख होती है, इनका तो पेट ही नहीं भरता। मेरे पाकिस्तानियों, हमने इनका मुकाबला करना है, अपने मुल्क को बचाना इन चोरों से, अमेरिकनों के गुलामों से। और आपने सबने मेरे साथ निकलना है। कौम के ऊपर अटैक हो जाए, बमबारी हो जाए, जापान के ऊपर एटम बम गिर गया, कौम फिर भी खड़ी हो जाती है, अपने पैर पर फिर भी खड़ी हो जाती है। अफगानिस्तान में कितनी 40 साल से इंतशार है, फिर भी वो कौम तकड़ी है। जब एक कौम की आप इखलाकियात खत्म करते हैं, कौम मर जाती है। जब एक कौम अच्छे और बुरे की तमीज खत्म करती है, कौम मर जाती है। कौम पहले इखलाकी तौर पे मरती है, फिर माशी तौर पे मरती है। 60% कैबिनेट जमानत के ऊपर है। जिस मुल्क में इस तरह के लोगों को बड़े बड़े ओहदों पे बैठा दिया जाए, उस मुल्क की इखलाकियात तबाह हो जाती है। कौन मेहनत करेगा? क्यों नौजवान 14 साल पढ़ाई करे, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करे, जब चोरी में और करप्शन में पैसा बन जाता है? इससे कौमें तबाह होती हैं। चाइना जब उठा और आज दुनिया में सबसे तेजी से तरक्की कर रहा है, 450 वजीरों को उसने करप्शन में पकड़ा। कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसकी अखलाकियात ऊपर ना हो। इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में अमर बिल मारूफ, उन्होंने अपनी कौम को कहा कि तुम हक और सच के साथ खड़े हो, तुम अच्छाई के साथ खड़े हो और बुराई और बातिल के खिलाफ जंग लड़ो। ये हुक्म है अल्लाह का, ये कुरान में है, अमर बिल मारूफ। इसके ऊपर एक माशरा खड़ा होता है। तो जब माशरे के बड़े बड़े ओहदे उसके बड़े बड़े मुल्क के मुजरिम ले ले, वो माशरे का कोई मुस्तकबिल नहीं है। हम दुनिया के सबसे अजीम लीडर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हमें कोई खौफ नहीं है। अल्लाह कुरान में कहता है जो लोग मान लिया अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है, हमारे में कोई खौफ नहीं है। कुरान के अंदर अल्लाह क्या कहता है? सबसे बड़ी इंसान की सिर्फ क्या है? वो जो मुश्किल वक्त पे सब्र करता है, पेशेंस इन एडवर्सिटी। ये सबसे ज्यादा ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें फिर इंसान का जो कैलिबर है ना, वो बढ़ता जाता है। जितना आप मुश्किल वक्त को फेस करते हैं, आप में कैपेसिटी मुश्किल वक्त की फेस करने की बढ़ जाती है। अगली वक्त कोई भी पैदा नहीं होता कोई बड़ा अजीम आदमी, लोग बनते हैं ये एडवर्सिटी देख के, मुश्किल वक्त देख के, डाउन साइकिल्स में सीख के। और सबसे ज़्यादा मुश्किल वक्त आपको सिखाता है। इंसान हमेशा अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता है। अल्लाह ने जब अशरफुल मखलूक़ात इंसान को दिया और फरिश्तों को कहा कि उसके सामने झुको, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ समझ देखिए कि फरिश्तों ने जब शैतान को, उसका तो यही जुर्म था ना, उसने कहा कि मैं तो आग का बना हूँ, मैं इसके मिट्टी के सामने क्यों झुकूँ? तो अल्लाह ने कहा तुम्हें भी नहीं पता कि मैंने इसको कितनी सलाहियत दी है, कितनी नॉलेज दी है। हमें खुद ही नहीं पता होता, हम अपने आप अंडर एस्टिमेट करते हैं, हम अपने टारगेट से बड़े लो सेट करते हैं। और फिर जब मुश्किल वक्त आती है हम हार जल्दी मान जाते हैं, हम हार मान जाते हैं कि जी हो ही नहीं सकती। तो जो मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है, और वो क्रिकेट से शुरू हुआ, कि जब तक आप हार नहीं मानते, हार आपको हरा नहीं सकती। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। मेरे पाकिस्तानियों, आपको किसी सूरत घरों में डर के बैठना नहीं चाहिए। जितना मैं कर सकता था मैंने किया, मैंने
किसी पे एहसान नहीं किया। मैं चाहता हूं कि मेरी नौजवानों को सबको पता हो कि हम हैं क्या, ये क्यों मुल्क बना था। जिस कौम के बनने के वक्त नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या। देखो तुम्हारी जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है, सुना आपने, सबने सुना। देखो तुम्हारी जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है। मेरा ये ईमान है कि मौत बेहतर है गुलामी से, इससे बेहतर है मर जाओ गुलामी। कोई इकबाल का एक शेर है कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मुफाजा, बुज़दिली की सजा ही मौत। You do not let the fear of death come in the way of what you believe is your mission. मौत बिस्तर पे भी आ जाया करती है, लेकिन जो मैदानों में डट के रहते हैं उनको तारीख जरा जिंदा रखा करती है। कि अगर इन चोरों की, इन डाकुओं के नीचे अगर जिंदगी गुजारनी पड़े ना, इनकी गुलामी करनी पड़े, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इससे बेहतर है कि मुझे ऊपर ले जाए। मैं गुलाम मुल्क में पैदा जरूर हुआ हूँ, लेकिन मेरे दिल ने गुलामी न कभी कबूल की है और न कभी करेगा। जब तक आपका कप्तान खौफजदा नहीं तो आपको किसी से डर है। गुलाम सिर्फ हम अपने अल्लाह के और उसके बाद उसके हबीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम गुलाम। बाकी हम किसी के सामने नहीं झुकते, क्योंकि हमने अल्लाह से वादा किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह कामयाब वो होता है जो बड़ी सोच, बड़ी ख्वाब रखता है और उसके बाद हार नहीं मानता। अपने से वादा करे कि या मैं कामयाब होगा या मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैंने हार नहीं माननी। ये जिंदगी में जब आप करेंगे, कोई किसी को शिकस्त नहीं दे सकता। जब वो ये फैसला कर लेता है कि या कामयाब होऊंगा या मैं मर जाऊंगा, जेलों में डालो, जेलों से निकल के फिर सड़कों पे आएंगे। हार नहीं मानते, उनको कोई हरा नहीं सकता। इमरान खान ने टक्कर बड़ी खूब दी, यानी वो अकेला निजाम से लड़ा, माफिया से लड़ा, मीडिया से लड़ा, बदतरीन प्रोपेगेंडा का उसने मुकाबला किया। मुझे अपनी जान से ज्यादा मुझे पाकिस्तान की आजादी की फिक्र है। मेरा ईमान है कि जब तक अल्लाह फैसला नहीं करता, इंसान दुनिया से नहीं जाता। क्योंकि मेरा अल्लाह बेईमान है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है। मैं मानता हूँ कि जिंदगी और मौत उसके हाथ में है। मैं मानता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई मुझे जलील नहीं कर सकता। हमारा जीना मरना इसके मुल्क में, और अब मैं आखिरी दम तक अपने मुल्क के लिए लड़ूंगा। मैं इन सब का मुकाबला करूंगा। Has anyone thought that what happens when there is a bloodbath? And we will fight. It will have consequences far beyond the world. It will have consequences for the world, because I'm warning you, it's not a threat. It's a fair worry. So where are we headed? कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। हमें आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ से गुजर गया। कभी रास्तों में तन्हा, कभी हूँ वरूद सहरा। मैं जुनूं का हम सफर हूँ, मेरा कोई घर नहीं। कुरान में कहता है कि मैं तुम्हारे ईमान को बार बार मुश्किलों से आजमाऊंगा। क्यों वो अल्लाह हमें मुश्किलें देता है? हमारी बेहतरी के लिए। सफर में हुए से दिमाग पर उमड़ेंगी मंजिलें मेरे कदमों की धूल ये जान गुजारी जानी है, या ये जान को आनी जानी है, इस तरह की कोई बात नहीं। वो साथ सलामत रहती है जिस तक जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, इज्जत अल्लाह के हाथ में, रिस्क अल्लाह के हाथ में। तो फिर डर किस चीज का? ऐसा हीरा आदमी, ऐसा लीडर कहाँ मिलता है? अल्लाह
ताला ने पाकिस्तान पे तोहफा दिया। हजरत उमर मदीना की रियासत के अंदर हजरत उमर जैसे एक अजीम लीडर को आम आदमी खड़ा होकर पूछता है कि किधर से आपने ये पैसा आया जो अपने कपड़े पहने हुए हैं। लीडर जवाब देता, हजरत उमर ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी मजाल है मेरे से पूछो। हजरत उमर ने जवाब दिया, लीडर जवाब देता। पाकिस्तान है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की पूरी दुनिया में पहचान है आप, पाकिस्तान के कप्तान है आप। मैं पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान का मालिक हूँ। ये जमीन, ये लोग मेरे हैं। इसके हुक्मरान मेरे मुकर्रर करदा और मुझे जवाब देंगे। मैं अहद करता हूँ कि मैं हर उस शख्स या इदारा व अंदरूनी या बैरूनी जो इस मुल्क के खिलाफ काम करेगा या इसके कानून को तोड़ेगा, उसके खिलाफ बिला बिरादरी, जबान और मजहब की तमीज के अपनी पूरी कुव्वत इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मैं पाकिस्तान का शहरी, इसका मालिक, इसकी बका का हतमी जामिन हूँ। पाकिस्तान पाइंदाबाद। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। जो अल्लाह का कलमा है वही हम सब के सीने में, जो डर डर के ही जीना है, मजा कैसा इस जीने में। चलो अपना कर्ज उतारो, कर दो हाने चित जानो, तुमने था खान निकाला हम वापस लाएंगे। जादू बंदे आवे, कदर कर ले जो मिले आवे, न गोली खाड़ तो भी बाद हाँ पैना तो हिले आवे। दिल जादू बंदे आवे, बदल दे तू जो लंगे आवे। मैं उस्मानू सलाम करा जिन्हें खान जमे आवे, खान जमे आवे। ला इलाहा इल्लल्लाह।
अल्लाह तेरे सिवा हम किसी के सामने नहीं झुकते, हम किसी डाकू के सामने नहीं झुकते, हम खौफ के बुत के सामने नहीं झुकते। उठ जाओ निकलो अब तुम, बतला दो इनको अब तुम, बुत खौफ के टूट गए हैं, दिखला दो इनको अब तुम। चाहे ये जुबान भी ले ले, ये हमारी जान भी ले ले, हक की दीवार बने हम, पिघला दो हमको अब तुम। कब तक ये सब सहना है, मिलकर इनको कहना है, तुम अपने तीर चला लो, सीने पर खाएंगे। उठ जादू बंदे आवे, कदर कर ले जो मिले आवे, न गोली खान तो भी बाद धोखा ना तो हिले आवे। उठ जादू बंदे आवे, बदल दे तू जो लंगे आवे, मैं उस्मानू सलाम करा जिन्हें खान जमे आवे, खान जमे आवे। जो कौम अपने नजरिए से हटती है वो कभी कामयाब नहीं होती। जो इंसान अपने नजरिए से हटता है वो भटक जाता है। और हमारा नजरिया मदीना की रियासत का नजरिया था। उसमें दो सबसे अहम चीजें थी, एक इंसानियत, फलाही रियासत, जिधर रियासत ने अपने कमजोर तबके की जिम्मेदारी लेनी थी, जिसको अंग्रेजी में वेलफेयर स्टेट कहते हैं, और दूसरा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि जो कौम ताकतवर चोर को छोड़ देती है और कमजोर चोर को जेल में डालती है वो तबाह हो जाती है। यानी जिस कौम में इंसाफ नहीं होता वो तबाह हो जाती है। What sort of a mindset would lay siege to 8 million people with 900,000 troops? Women, children, sick people, locked in as animals. Of what I know of England, if 8 million animals were locked in, the RSPCA would have made a lot of noise about it. These are human beings. What is going to happen when the curfew is lifted will be a bloodbath. The people will come out. There are 900,000 troops there. These 900,000 troops, what are they going to do when they come out? There'll be a bloodbath. Mr. President, has anyone thought that what happens when there is a bloodbath? And we will fight. And when a nuclear armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. It will have consequences for the world, which is why I repeat I'm here. Because I'm warning you, it's not a threat. It's a fair worry that where are we headed? And I've come here to tell the UN, you've got to, this is a test for the United Nations. You are the one who guaranteed the people of Kashmir the right of self-determination. This is the time to take action. And number one action must be that India must lift this inhuman curfew, which has lasted for 55 days. The world community must give the people of Kashmir the right of self-determination. Thank you.
ابن خلدون کہتا ہے کہ جو جتنی میری سٹڈی ہے قرآن کی اور اسلام کی، تو اللہ نے انسان کو دنیا میں صرف ایک وجہ سے بھیجا کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو۔ جب آپ ان چوروں اور لٹیروں اور قاتلوں کے خلاف جب آپ ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو یاد رکھیے یہ پولیٹکس سے اوپر چلی جاتی ہے بات، یا پھر اللہ کی رائے حق پہ چل رہے ہیں آپ، وہ راستے پہ جو آپ نماز میں مانگتے ہیں آپ اس راستے پہ چل رہے ہیں۔ اور یہ اس وقت قوم کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے، ہم ان لوگوں کو شکست دے گئے، پاکستان اوپر چلا جائے انشاءاللہ۔ اور اگر ہم کامیاب نہ ہوئے تو یہ جو جنگ لڑنی پڑے گی یہ پھر آپ کے بچوں کو لڑنی پڑے گی، کیونکہ جنگ یہ لڑنی پڑے گی کبھی نہ کبھی ان چوروں کے ساتھ، تو وہ مشکل ہوتی جائے گی ملک کے لیے۔ نون لیگ پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ سب ایک طرف کھڑے ہیں، تو ظاہر ہے ابھی تک جو ہم نے بائی الیکشنز لڑے ہیں جب سے ہماری گورنمنٹ گرائی ہے انہوں نے، اور وہ بھی ان سب نے مل کے گرائی تھی، اور وہ تو اب ایک جنرل باجوہ کا کوئی ایک انہوں نے صحافی کو بیان بھی دیا ہے کہ ہم نے کس وجوہات سے گرائی تھی گورنمنٹ، تو وہ مان گیا ہے رجیم چینج کا، تو انہوں نے مل کے گرائی تھی، اس کے بعد سب اکٹھے رہے۔ ہم نے 36 بائی الیکشنز میں سے 29 جیتے ان سب کو ہرا کے، یہ سب ایک طرف کھڑے تھے اور ہم نے ان کو ہرایا، اور لگ رہا ہے کہ یہ ابھی بھی جو الیکشنز ہوں گے یہ سب مل کے ہمارے خلاف لڑیں گے۔ ابھی آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے اہم ترین پلیئرز ہیں آپ کا ان کے اوپر 100% اعتماد نہیں ہے؟ دیکھیں ابھی تو وہی جنرل باجوہ کی پالیسیز چل رہی ہیں، اور جنرل باجوہ نے تو اب خود ہی کہہ دیا ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ گرائی تھی کیونکہ جو بھی وہ کہتے تھے ملک کو خطرہ ہے، تو اس کے بعد جو گورنمنٹ لے کے ہیں وہ اس نے ملک کا معیشت کی تو بالکل تباہی کر دی، بلکہ ہر طرح ملک نیچے چلا گیا۔ بلکہ آج جو حالات ہیں پاکستان کے، ہماری تاریخ میں کبھی اتنے برے حالات نہیں تھے جو آج ہیں۔ جنرل باجوہ آپ ٹی وی پہ آ کے تسلیم کر چکے ہیں کہ فوج بطور ادارہ سیاست میں ملوث رہی ہے، بطور سابق وزیر اعظم آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے؟ دیکھیں ان کے اوپر بالکل اب بلکہ فوج کے اندر بیٹھ کے ان کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے کہ ان کے اپنے بیان جو انہوں نے دیے ہیں اور بڑے فخر سے اور بڑے ایک تکبر سے کہ میں نے فیصلہ کیا کہ ملک کے یہ حالات تھے، جس طرح کہ وہ کوئی معیشت کے ایکسپرٹس ہیں، تو اس کے اوپر اندر سوچنا چاہیے کہ دیکھیں اس سے ہوا کیا، عوام اور اسٹیبلشمنٹ فیصلے بڑھ گئے ہیں۔ جو ساری قوم سمجھتی تھی کہ انہوں نے جنرل باجوہ کی وجہ سے یہ گورنمنٹ گری ہے، وہ اب انہوں نے خود ہی تسلیم کر لیا ہے، تو اب تو انہوں نے پردہ ہی ہٹا دیا اس چیز سے جو کہ پہلے لوگوں کا ایک شک تھا، بلکہ شک بھی نہیں، لوگوں کو واضح ہو گیا تھا کہ آرمی چیف نے گورنمنٹ گرائی ہے۔ آج تک کوئی بڑا بزنس مین نہیں بنا جو نقصان سے ڈرتا ہو، جو کرکٹر ہارنے سے ڈرتا ہو، اسے جیتنا نہیں آتا۔ جس بیٹسمین کو تیز بولر سے گیند لگنے کا خوف ہوتا ہے وہ بڑا بیٹسمین نہیں بنتا۔
दुनिया के पहले इंसान ने दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ के ऊपर चला था, माउंट एवरेस्ट के ऊपर। जब एक एडमंड हिलरी चला था, तो उससे पहले जिन्होंने भी कोशिश की थी उस पहाड़ पे चढ़ने की, या वो मर गए थे और या वो फेल हो गए थे। तो जब पहले इंसान ने सबसे ऊंचे पहाड़ पे चढ़ा, तो अपने खौफ के ऊपर काबू पाया। मैं अपनी कौम को आज ईद का दिन है, सबके सामने एक ही बात करता हूं कि अल्लाह कुरान में कहता है, मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। तो अल्लाह ने तो बड़े वाज़े तौर पे हमें बता दिया है, अमर बिल मारूफ, कि आप अच्छाई के साथ खड़े हों और बुराई के खिलाफ खड़े हों। अल्लाह ने आपको ये फैसला करने का ऑप्शन ही नहीं दी कि आप बीच में खड़े हो जाएं, या आप अच्छाई के साथ खड़े हों। और अब महज़ब माशरे हमेशा राय हक पे खड़े होते हैं, और जो बातिल है, जो जिस तरह के ये डाकू सामने आए, इनके खिलाफ खड़े होते हैं। ये आपको अपनी मुस्तकबिल बचाने के लिए, इमरान खान को कोई अल्लाह ने, मैं उसका जितना भी शुक्र अदा करूँ का, मैं मुझे सब कुछ दे दिए। आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि इस वक्त अपने इस मुल्क के मुस्तकबिल को बचाने के लिए आपको जद्दोजहद या जिहाद करनी पड़ेगी। आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि क्या हम इसी तरह बेकारियों की तरह ज़िंदगी गुजारनी है, और या एक आज़ाद कौम, जो बहुत बड़ा एक ख्वाब था पाकिस्तान का, जो इलामा इकबाल के अगर पढ़ें तो सही कि कितनी बड़ी सोच थी और ख्वाब था, और कायद आज़म जैसे लीडर थे। तो हमें आज फैसला करना पड़ेगा, और अगर हमने ये सही फैसला ना किया, ये हम सबको, ये कभी तारीख माफ़ नहीं करेगी। तो अल्लाह ने कुरान में कहा हुआ है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। हम जब तब्दीली लाने की कोशिश करते हैं तो इमरान खान आके एक स्विच ऑन करके तो तब्दीली नहीं लेके आएगा। कौम का ज़हन बदलता है। हम इस तरह की ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते, हम अपनी ज़िंदगी बेहतर करना चाहते हैं। हम भी दुनिया के अंदर एक छाती निकाल के फिरना चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। हरे पासपोर्ट की दुनिया में हम इज्जत चाहते हैं। तो ऐसे तो नहीं इज्जत आती। इज्जत खुददार कौम को मिलती है, सच्ची कौम की इज्जत होती है। मलेशिया और इंडोनेशिया में जब लोगों ने इस्लाम कबूल किया तो वहां कोई मुसलमान फौज तो नहीं गई थी, मुसलमानों ने फतह तो नहीं किया था इंडोनेशिया और मलेशिया। जो मुसलमान ताजरों का कैरेक्टर देखा लोगों ने, उतने मुतासिर हुए कि उससे वो लोग मुसलमान हो गए। सच्चे लोग थे, कैरेक्टर वाले लोग थे, कोई बददियानतदारी नहीं करते थे, अपने लोगों से लोग रिस्पेक्ट करते थे, अमानतदार लोग थे। इसलिए लोग उनको मुतासिर होकर उनकी तरफ आए। तो हम पाकिस्तान में रियलाइज नहीं करते कि अल्लाह ने इस जमीन को क्या क्या नेमतें बख्शी। जनरल बाजवा के भी रिसेंटली एक इंटरव्यू आया, उसके अंदर उन्होंने बताया कि ही बिलीव दैट यू वर रियली बैड फॉर पाकिस्तान, और आप अगर रहें तो पाकिस्तान में आगे इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है और बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। पहले तो मुझे ये बताइएगा कि हाउ डू यू फील अबाउट दैट, कंसिडरिंग के theoretically you're the chief executive of the country, how are other people making decisions on the behalf of the people? देखो, इसकी ये जो स्टेटमेंट जनरल बाजवा ने दी है ना, इसके 2-3 पहलू हैं और ये सारी पाकिस्तान के लिए बड़े ख़तरनाक है। सबसे पहले एक ग्रेड 22 ऑफिसर कैसे फैसला करता है कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर क्या मुल्क की बेहतरी करता है या मुल्क को तबाह कर रहा है, उसने किस तरह ये फैसला किया। पहले तो ये डिसीजन मेकिंग के ऊपर गौर करना चाहिए कि बंद कमरों में एक आदमी अपने जो भी कोलीग्स को मिला के फैसला करता है, जिससे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो कि इस मुल्क के लोगों ने इलेक्ट किया है उसको हटा दिया जाता है साजिश करके। तो पहले तो ये जो डिसीजन मेकिंग है, अगर आप इसके ऊपर गौर कर लें तो आपको पता चलेगा कि क्या पाकिस्तान का ये कितना बड़ा इशू है कि वो लोग जिनको अपनी ओथ इजाज़त नहीं देती, जिनको पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त नहीं देती, वो कैसे फैसला कर रहा है कि जी मुल्क के लिए क्या बेहतरी है क्या ख़राबी है। ये नंबर 1 इसका इशू आता है। नंबर 2, इससे भी ज़्यादा खौफनाक पाकिस्तान के लिए जो चीज़ सामने आई है कि एक गवर्नमेंट जो पाकिस्तान की द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो इस गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है,
उसके अंदर आप सिर्फ देख लें कि पाकिस्तान खड़ा किधर था। पिछली मार्च 2022 में पाकिस्तान किधर खड़ा था, और जब रजीम चेंज किया तो आज पाकिस्तान किधर खड़ा है। 10 महीने में पाकिस्तान किधर से किधर पहुंचा है। यानी एक रनिंग इकॉनमी, सारे पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे वो सब पॉजिटिव में थे। सारी जो हमने टारगेट सेट किए थे, मसलन एक्सपोर्ट्स के, रेमिटेंसेस के, ग्रोथ रेट के, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के, जो आईटी एक्सपोर्ट्स, सारे हमने अपने जो टारगेट्स थे उनसे ऊपर आगे निकल गए थे। 2 साल कोविड के बावजूद पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी 17 साल के बाद बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। और 17 साल पहले अमेरिकन डॉलर्स आ रहे थे, हम उनकी जंग लड़ रहे थे। ये अमेरिकन डॉलर्स आने के बगैर एक इकॉनमी तेजी से आगे जा रही थी, और IMF उसे कह रहा था सस्टेनेबल ग्रोथ पे निकल गई थी, इंक्लूसिव ग्रोथ पे निकल गई थी। यानी हम अपने निचले तबके को भी उठा रहे थे। हेल्थ कार्ड जो कि रेवोल्यूशनरी चीज़ थी पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर में, एहसास प्रोग्राम जो दुनिया ने एक्नॉलेज किया, वर्ल्ड बैंक ने किया, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उसको सिंगल आउट किया कि वो वेलफेयर स्टेट की तरफ पाकिस्तान को लेकर जा रहा है। और वो फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि IMF उस वक्त, और ये सिर्फ 1 साल पहले IMF की रिपोर्ट है, समरी, एग्जेक्टिव समरी है कि पाकिस्तान उस पाथ पे निकल गया है। उसको एक आदमी ने बंद कमरे में फैसला करके गवर्नमेंट गिरा दी, और आज पाकिस्तान हमारी 75 साल की तारीख के सबसे बदतरीन टाइम पे खड़ा है। इकोनॉमिक कोलैप्स है। कल इंग्लिश अखबार में आर्टिकल आया कि पाकिस्तान सेट टू इम्प्लोड, यानी पाकिस्तान श्रीलंका टाइप सिचुएशन में जा रहा है। ये सारा चीज़ मैंने पेशन गोई की थी। मैंने जब ये जनरल बाजवा जब सोच रहा था कॉन्स्पिरेसी का, तब भी उसको बताया, शौकत तरीन ने उसको बताया कि ना करो। उसके बाद मैंने 1 जून को मेरा इंटरव्यू है समी इब्राहिम का, मैंने प्रिडिक्ट किया कि ये बैंकरप्ट करेंगे मुल्क को, और इवेंचुअली हमारी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ होना पड़ेगा। और मैंने कहा कि हमारे जो एसेट्स हैं वो ख़तरे में होंगे। आज पाकिस्तान उधर ये ले गए हैं। ये चोरों ने अपने आप को तो NRO दे दिया, 1100 अरब रुपए के अपने तो इन्होंने करप्शन के केसेस माफ़ करवा लिए, और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि जब मुल्क बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है। 100 रुपया गिरा डॉलर के मुकाबले में सिर्फ 10 महीने के अंदर। ये अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की तारीख। महंगाई 50 साल में पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा महंगाई है, और अभी और आनी है। तो कौन जिम्मेदार है इसका? सबसे खौफनाक बात तो ये है कि जो आदमी प्राउडली कहता है कि मैंने गवर्नमेंट गिराई क्योंकि ये ख़तरा था, आज उससे पूछे कि ये जो मुल्क के अंदर इस वक्त मायूसी है, इकोनॉमिक कोलैप्स है, कौन जिम्मेदार है इसका? इन चोरों के सारे केसेस माफ़ करवाने का, रूल ऑफ लॉ ख़त्म करने का। एक फैशिस्ट बिल्कुल मुल्क के अंदर कभी इस तरह का फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन नहीं जो आज हुई है, क्योंकि हमें एक्सेप्ट करवाने के लिए इन चोरों को इन्होंने वो हमारे ऊपर जुल्म किया है, हमारी लोगों पे। आज़म स्वाति, अरशद शरीफ, शहबाज गिल, फवाद चौधरी को उठा के जेल में, शेख रशीद को जेल, ऐसे तो कभी पाकिस्तान में हुआ ही नहीं है। तो हर तरह जो आज पाकिस्तान अपनी तारीख की सबसे उस मरहले पे खड़ा है जो कभी भी पाकिस्तान इतनी बुरे हालात नहीं थे। कौन जिम्मेदार है इसका? पाकिस्तानियों को मैं आज कह रहा हूं, तैयारी करो, तैयारी करो आप सब। और मैं सियासत की बात नहीं कर रहा, मैं हकीकी आजादी की बात कर रहा हूं, मैं जहाद की बात कर रहा हूं, मैं उस पाकिस्तान की बात कर रहा हूं जो मेरे लीडर कायदे आजम ने जद्दोजहद की, और मेरा जो नजरियाती लीडर इलामा इकबाल की जो सोच थी, उस पाकिस्तान को अगर हमने, वो पाकिस्तान जिसने एक अजीम कौम बनना था, जिधर दुनिया में हर पासपोर्ट की इज्जत होनी थी, जिसका नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह,
اے اللہ تیرے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے, ہم کسی امریکی کے سامنے نہیں جھکتے, ہم کسی ڈاکو کے سامنے نہیں جھکتے, ہم خوف کے بت کے سامنے نہیں جھکتے. کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ تھے. کوفہ کے لوگ جانتے تھے, لیکن یزید کے خوف کی وجہ سے نکلے نہیں. اور اسلام کی تاریخ کا سب سے برا ثانیہ ہوا, سب سے تکلیف دہ واقعہ ہوا, کیونکہ لوگ ڈر گئے, خوف زدہ ہو گئے, لا الہ الا اللہ کو بھول گئے. بجائے اللہ کہ تیرے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے, خوف کے بت کے سامنے جھک گئے اور ظلم ہوا. اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا ثانیہ ہوا. میں آج اب پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں کہ توڑ دو یہ خوف کے بت کو توڑ دو. یہ جو ٹیلی فون آتا ہے جی گمنام نمبر سے دھمکیاں دینے کے لیے, واپس دھمکیاں دو ان کو. جو ڈراتا ہے واپس ڈراؤ اس کو. جو مسٹر ایکس اور مسٹر وائی لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں, واپس دھمکیاں دو ان کو. یہ ہوتے کون ہیں؟ یہ ہوتے کون ہیں آپ کو ڈرانے والے؟ آپ ہیں اس ملک کی قوم, عوام ہے ملک کا. جو ملک کی قیادت عوام کا فیصلہ ہے. یہ خفیہ نمبروں سے ڈرانا دھمکانا کہ جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں, جو کرنا کرو ہم بھی کریں گے. یوتھ کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ پیشن ہوتا ہے, جنون ہوتا ہے. جیسے جیسے آپ کی عمر ہوتی جاتی ہے تو آپ زیادہ ریئلزم پہ آ جاتے ہیں, زمینی حقائق پہ آ جاتے ہیں, اور آپ میں وہ جو جنون اور جو خواب دیکھنا وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. زندگی میں مار کھا کے انسان اس طرف پہنچ جاتا ہے. میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ اصل میں انسان بوڑھا تب ہوتا ہے جب اس میں جنون ختم ہو جاتا ہے, جب اس کو خواب دیکھنا ختم ہو جاتا ہے. لیکن یوتھ کی یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتا ہے, اچھے برے میں دیکھتا ہے. عموماً ریولوشنز جو آئی ہیں وہ ہمیشہ یوتھ لیڈ ہوتی ہیں. کبھی میری طرح کے بوڑھے ریولوشن نہیں لیڈ کرتے, یوتھ آتی ہے سامنے, فور فرنٹ پہ ہوتی ہے ریولوشن کی, کیونکہ وہ ایک یوٹوپیا دیکھ رہے ہوتے ہیں, خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ ان انفارم نہیں ہوتے, یہ آئیڈیلزم ہوتی ہے, اور یہ بہت ضروری ہوتی ہے ملک میں چینج لانے کی. اگر آپ نے یہ پرانے سسٹم جو کہ پٹا ہوا سسٹم, یہی لوگ ہیں 30 سال سے جو باریاں لے رہے ہیں, انہوں نے تو یہاں تک پہنچایا ہے, تو ان کو جب ہٹائے گا تو وہ ایک یوتھ کا جنون ہٹائے گا, جو میرا ایمان ہے کہ یہ بالکل وائپ آؤٹ ہو جائیں گے اس آنے والی الیکشن میں. اسٹیٹمنٹ آپ کی بہت زیادہ وائرل جا رہی ہے جس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ یو ایس گورنمنٹ یا یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ انوالو نہیں ہے ریجیم چینج کنسپریسی کے اندر. اس کی اگر آپ کلیریفیکیشن دے دیں گے, کیا واقعی آپ نے ایسا یو ٹرن لیا ہے؟ دیکھیں وہ بڑا واضح, میں نے وہ وائس آف امریکہ کو جو انٹرویو دیا ہے, میں نے اسے کہا کہ دا سائفر از ریئل. جو سائفر ہے وہ ہماری نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں رکھا گیا, ہماری کیبنٹ کے اندر اس کے منٹس ہیں, پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا. سائفر کیا تھا؟ سائفر کے اندر ڈونلڈ لو ہمارے ایمبیسڈر کو کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں اگر نہ ہٹایا تو پاکستان کے لیے کانسیکوینسز ہے. دھمکی دی تھی, وہ ریل تھا. میں صرف کہہ یہ رہا تھا کہ اوریجنلی ہم سب سمجھ رہے تھے کہ امریکہ سے یہ انیشیٹ ہوا ہے. بعد میں ہمیں پتہ چلا, جب حسین حقانی کا ہمیں پتہ چلا کہ اس کو جنرل باجوہ نے ہائر کیا تھا ہمارے فورن آفس کے نیچے میرے خلاف کیمپین کرنے کے لیے امریکہ میں. حسین حقانی کی ایک ٹویٹ ہے جب وہ ہائر ہوا تھا پاکستان کے فورن آفس کے نیچے جنرل باجوہ نے, اس کی ٹویٹ یہ ہے کہ عمران خان اینٹی امریکن ہے اور جنرل باجوہ پرو امریکن ہے. سو یہ لابی کی گئی اور ادھر سے پھر انیشیٹ ہوا, جب انیشیٹ یہاں سے ہوا اور پھر ادھر سے ڈونلڈ لو نے یہ دھمکی دی.
تو وہ تو ریل ہے, وہ تو سائفر ایگزسٹ کرتا ہے. تو سائفر کے اندر دھمکی ہے, اور جو سازش جو پوری ہوئی وہ شروع یہاں سے ہوئی, اور پھر انہوں نے یہاں سے دھمکی دی, اور انہوں نے پھر نو کانفیڈنس کر دیا. تو اس سے تو کوئی کبھی میں نے پیچھے ہٹا ہی نہیں. جب تک یہ الیکشن نہیں اناؤنس کریں گے یہ ہماری تحریک جاری رہے گی, کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا. ساری قوم کو میں آج دعوت دے رہا ہوں, تحریک انصاف کو نہیں دعوت دے رہا, اپنی قوم کو دعوت دے رہا ہوں, پاکستانیوں کو دعوت دے رہا ہوں. دو قسم کی ہماری جنگ ہوگی. باہر کی جو سازش اس ملک میں اپنے پتلے رکھنے کے لیے, اس سے ہم نے آزاد ہونا ہے, اور یہ جو چور اور ڈاکو ہمارے اوپر مسلط ہو گئے, ان سے آزاد ہونا ہے. میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں, لیکن میری قوم نکلے گی. میں اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن میں کسی صورت نہ ان چوروں کو مانوں گا, نہ امریکہ کے غلاموں کو مانوں گا. کسی کو مار کے چھوڑا, کوئی عزت سے ہارا تو کسی کو توڑ کے جوڑا. حق تلفی نا انصافی کا, ظلم و ستم صفاقی کا, سرکار کی ہر کم ظرفی کا, نظام کی اس بدماشی کا. ووٹ حساب کرے گا سب, ووٹ ہی بدلا لے گا. اب ظلم کا بدلہ ووٹ سے, ستم کا بدلہ ووٹ سے. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ فائرنگ کرے, فائرنگ کی کوئی اجازت نہیں تم لوگوں کی. کہیں سوچوں پہ پہرے ہیں, کہیں اندھیرے گہرے ہیں, کہیں دہشت کے سائے ہیں, کہیں صفاق چہرے ہیں. ذہنوں کی تالا بندی کا, سوچوں پہ پابندی کا, اور سسکی یا ہوزاری کا, مافیا کی عیاری کا. ووٹ حساب کرے گا سب, ووٹ ہی بدلا لے گا. اب دہشت کا بدلہ ووٹ سے, دہشت کا بدلہ ووٹ سے. اللہ کا قانون ہے کہ جو طاقتور ہے وہ ہمیشہ طاقتور نہیں رہتا. یہاں انصاف جھکتا ہے, یہاں پہ قلم بکتا ہے, یہاں پہ جسم چھلنی ہے, زخم سے خون رستا ہے. آئین کی پامالی کا, قوم کی بدحالی کا, اس رات کی تاریکی کا, ناحق قیدی کا. ووٹ حساب کرے گا سب, ووٹ ہی بدلا لے گا. اب جبر کا بدلہ ووٹ سے, قہر کا بدلہ ووٹ سے, جبر کا بدلہ ووٹ سے, قہر کا بدلہ ووٹ سے. یہ جو بوتل سے جن نکلا ہے نا شعور کا, اس کو واپس نہیں اب ڈال سکتے.